Bhavita sister? Yes. Okay. Yeah, lead. Okay, you do. If you're doing, you do, no problem. Bhavita, you do. Okay. Yeah. Going this way. Just should we start? Yeah, sister, you can start. Yeah. Father, we thank you and praise you for this time, O Lord. Thank you, Father, for this gathering, O Lord. We pray for all the people who are gathered together over here, O Lord Father. Once again, O Lord Father, for enabling us, O Lord Father, together, O Lord Father. We thank you and we bless you, Lord Father. It is possible because of you, O Lord Father. We cannot do anything on our own, O Lord Father, but by your strength, we can do everything, O Lord Father. We thank you and we bless you, Lord Father. We glorify your holy name, O Lord Father. In Jesus' most precious name we pray. Amen. So बच्चों का ओके हर टाइम अंजलि सिस्टर बच्चों का ये ले रहे थे, आज मैं ले रही हूँ। और अंजलि आंटी ने आप लोगों को बहुत से सॉन्ग सिखाए, एक्शन सॉन्ग सिखाए हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक एक्शन सॉन्ग सिखाऊंगी। वेरी इजी है, आप लोगों को सबको मालूम है वो। तो कितने बच्चे हैं? सबसे छोटा बच्चा। अच्छा, I think only Tabitha, Philemon and Sneha is there, I think. Only 3 of them. So we'll go. Yeah, that's okay. Whoever is there. Okay. I'll be taking Matthew 6 verse 33. I'll speak in English only because everybody understand English. So Matthew 6 33, it says, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Amen. God is telling us, seek first the kingdom of God, his salvation, his all the things we have to seek him, and all the things before that. God is talking about the clothing, the drinking, the eating, everything God is talking about. He says not to worry about all these things, but when you seek the kingdom of God, all these things will be added unto you. Okay, shall we sing that song? Sneha, can you put on the camera? Okay. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Did you all get it? Philemon, can you do it? Philemon, can you do it? Now I forgot. Yeah, all those things, all three of you are there. Ishita also joined. I think Ishita, yeah, she is also there. Can we do once again? Yeah. Seek ye first the kingdom of God
and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Very good, Philemon, Tabitha, Sneha, very good. Very good. So we'll start the verse, memory verse. We'll start from Philemon. Psalm 104 verse 1 to 4. Bless the Lord, O my soul, O Lord my God. You are very great. Your road with order and majesty. Put away yourself in light as with a garment. Who stretch out the heavens like a curtain. Who lays the wings of his upper chamber in the water. Who makes his clouds a chariot. Who walks on the wings of the wind. Who makes angels flame of fire. Psalm 104 verse 1 to 4. Psalm 26 verse 3. For your loving kindness is before my eyes, and I have walked in your truth. Ishita. For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. He will save us. Isaiah 33:22. Very good. Hello. Mahima. Mahima. Praise the Lord. Hallelujah. Mahima. भजन संगीता. अच्छा. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ भजन संगीता. 34. आवाज जा रहे बोल. 34:10. जवान सिंहों को तो गति होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की गति ना होगी. Amen. Sneha. Isaiah 59 verse 1 and 2. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor is ear dull to hear, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. And okay. Anjali sister, can you pray for them? Anjali sister, can you pray for all the children? Yes. Thank you, Lord, for this time, Lord. Thank you for all the kids, Lord. May they grow in your word, Lord. May they experience you in their life, Lord. And Lord, use them for your kingdom, for your glory, Lord. Bless them, Lord, and protect them, Lord. Thank you once again. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah, Bethany. Yes, uncle, just give me 1 minute. Bethany, are you leading worship?
I believe you all can hear me. Yeah, now we can hear you. Okay, so our life is in the Lord. He is our strength and He is our hope. Our hope is in Him and Him alone. Without Him, we can do nothing. So let us all come and worship Him in His presence and glorify and magnify His holy name, because He is truly worthy of our worship. मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा सामर्थ तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में तुझ में। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा सामर्थ तुझ में प्रभु। तुझ में है, तुझ में मैं स्तुति करूं सारा जीवन। मैं स्तुति करूं सारे मन से, संपूर्ण जीवन से, संपूर्ण सामर्थ से। सारी आशा तुझ में है, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा सामर्थ तुझ में प्रभु, तुझ में मैं स्तुति करूं सारा जीवन। मैं स्तुति करूं सारे पल से, संपूर्ण जीवन से, संपूर्ण सामर्थ से। सारी आशा तुझ में है, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है
यीशु, तुझसे यीशु, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, 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 प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हाँ प्रभु, हमको आपसे प्यार है, आपके बिना कोई नहीं है, सिर्फ आपके नाम की जय जयकार हो, आपके नाम को प्रशंसा मिले, स्तुति मिले, आपके नाम में हमें भरपूरी मिलती है, आपके नाम में आनंद की भरपूरी है पिता। हम आपके नाम को आदर और धन्यवाद देते हैं। चाहे
है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम से शैतान भागे, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। Hallelujah. This beautiful day you've given us, O Lord. We thank you for gathering each and every one of us once again, Lord, in your presence, O Lord. We thank you for your hand of protection that's always around us, O Lord God. And we thank you that you never leave us nor forsake us, O Lord. You have said in your word that a mother might forget a breastfeeding child, O Lord, but you, my God, will never forget us, O Lord. And we thank you for your faithfulness, O Lord, towards us, for your overbounding, overwhelming love, O Lord, Father. We thank you, Lord, Father,
for keeping us, for providing for us, O Lord, for being our provider, for being our rock when we need you, O Lord. For your work is perfect and all your ways are just and pure, O Lord, Father. And to you be all the glory and honor. For yours is a beautiful name, the wonderful name, O Lord, the name of Jesus Christ, our Savior and Messiah, O Lord. We thank you, Lord Father, for once again gathering each and every one of us. We pray for everyone who couldn't come, O Lord Father. Help them to come next time, O Lord Father. You know, O Lord Father, whatever may the reason be, O Lord Father. You know, O Lord Father. We thank you, O Lord Father. We commit the rest of the time into your hands, O Lord. You lead us and guide us. Send your Holy Spirit among us, O Lord Father, and lead us into your presence, O Lord Father. And let everything that we do bring glory and honor to your holy name, O Lord Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Thank you, Babita sister, for leading the kids and Bethany for the worship. प्रभु धन्यवाद और एक बार ऐसा हम सब मिल पाए और आज वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक उसका 24 अध्याय। निर्गमन का पुस्तक उसका 24 अध्याय। ओके, 24 अध्याय के पहले 23 अध्याय में पिछले बार हमने सीखा, निर्गमन का पुस्तक उसका 23 अध्याय में परमेश्वर ने कहा 23 वाक्य में कि मेरा दूत तेरे आगे आगे जाएगा और तुझे अमोरी, हित्ती, पेरिजी, कनानी, हिवित और जेबूसी के लोगों के बीच में ले आएगा। ओके, और मैं उन लोगों को सर्वनाश करूंगा, परमेश्वर कहता है। तो उस वचन को हमने विस्तार में सीखा पिछले बार, कैसे परमेश्वर हमें एक बंधन से छुटकारा देता है, हमें एक जगह से निकालता है और परमेश्वर का उद्देश्य हमारा छुटकारा करने का उद्देश्य हमें एक दूसरे जगह में ले चलने के लिए है। ओके, सिर्फ एक जगह से निकालना नहीं परंतु प्रवेश भी कराना है। ओके, और केवल प्रवेश कराना नहीं परंतु विजय होकर। तो परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया और इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि मैं इजरायलियों को एक देश में ले चलूंगा जो देश दूध और मधु से बहता है। ओके, जरा सोचकर देखो, यदि इजरायली लोग मिस्र देश से निकलते वक्त ये सोचकर यदि निकले कि हाँ हम एक देश में जा रहे हैं जहां पे दूध और मधु बहता है, ओके, तो केवल ये आनंद से अगर निकलेंगे, केवल ये सोच कर कि दूध और मधु बस, ओके, वचन के ज्ञान, पूर्णता के ज्ञान, जो संपूर्ण वचन का ज्ञान जब हम लेंगे तब हमें एहसास होता है कि ये केवल एक ऐसा एक देश जो दूध और मधु से बहता है, ऐसा एक देश में प्रवेश करना केवल वो बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य उससे भी बहुत बड़ा है। We Christians always or often Christians don't focus on the journey on the earth. How are we living our life? How is our behavior? How is our thought process? What do we think? What are we speaking? What are our motives? Okay, what is our intention behind doing things? हमारा उद्देश्य
क्या है, हमारा शब्द क्या है, हमारा सोच कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा इस संसार का जीवन कैसा होना चाहिए, इसमें ज्यादातर मसीह लोग ध्यान नहीं देते, अहमियत नहीं देते। केवल उद्धार हुआ है और स्वर्ग पहुंचना है, बस ये दो विषय। ओके, इसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, एक जीवन है। वो जीवन यदि वचन के अनुसार न होगा तो स्वर्ग के बारे में सोचना, की आशा रख के बैठना, ये व्यर्थ है। इसलिए स्वर्ग हमारे यहाँ के जीवन का एक फल है, ये भी हम कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्मों के अनुसार मिलेगा, नहीं, लेकिन ये कर्म के पहले हमारा उद्धार पहला आता है। तो हमारा उद्धार हुआ है, विश्वास से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। तो विश्वास से यदि उद्धार हुआ है तो याकूब का पुस्तक में हम सीखते हैं कि विश्वास है तो कार्य भी होना चाहिए। तो कार्य इस संसार में है, मैं उस कार्य की बात कर रहा हूं। विश्वास से अगुवाई किया हुआ कार्य, ओके, ऐसा कार्य करने वाले वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताएंगे। लेकिन केवल यदि विश्वास से उद्धार हुआ है और कार्य नहीं है तो वो विश्वास मरा हुआ है, याकूब का पुस्तक सिखाता है हमें। और यदि विश्वास मरा हुआ है तो मैं कहूंगा जिस विश्वास से मेरा उद्धार हुआ है, ऐसा मैं क्या बोलता हूं, जो मैं which I claim, what you call for claim, दावा। Yes. ओके, तो जो विश्वास से मेरा उद्धार हुआ है, ऐसा मैं दावा करता हूं। अगर विश्वास मरा हुआ है, कार्य नहीं है इसके लिए, तो मेरा उद्धार भी फिर मरा हुआ है। मतलब मेरा उद्धार सचमुच का हुआ नहीं। एक व्यक्ति का यदि सचमुच का उद्धार हुआ है तो कार्य जरूर दिखेगा। मैं सिद्ध बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओके, हमारे गलतियों में भी हम सुधार लाते रहेंगे, सिद्धता की ओर हम बढ़ते रहेंगे। वी विल बी वर्क इन प्रोग्रेस क्रिश्चियंस। ओके, ऐसे लोग आशा रख सकते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। ओके, उसी प्रकार इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर ने जब इब्राहिम से सबसे पहला कहा था, तेरे संतान एक अलग देश में गुलामी में रहेगा और वहां से मैं छुड़ाऊंगा उनको, और तेरे वंश को मैं एक ऐसा देश में ले चलूंगा जो देश में दूध और मधु बहता है। ये परमेश्वर ने जरूर कहा उस देश के बारे में जो दूध और मधु से बहता है, लेकिन वही परमेश्वर छुटकारा होने के बाद, मिस्र देश से छुटकारा होने के बाद मूसा के द्वारा इजरायलियों के कनान देश में पहुंचने के पहले मरुभूमि के यात्रा में जीवन कैसा होना चाहिए, उसका विस्तार में आज्ञाएं परमेश्वर ने दी। गिनती का पुस्तक में हम पढ़ते हैं विस्तार में क्या आज्ञा परमेश्वर ने दी। ओके, तो यहां पर जब लिखा है कि 23 वाक्य हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा, मैं तेरे आगे आगे दूत को भेजूंगा और
अमोरी, हित्ती, पेरिजी, कनानी, हिवीती, जेबूसी, ऐसे लोगों के, क्या लिखा है? ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उसका सत्यानाश कर डालूंगा। नहीं, और एक बार पढ़िए, सुनाई नहीं दिया। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। हाँ, यहाँ पहुंचाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यहाँ पहुंचाएगा। ओके, तो शुरुआत में इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि दूध और मधु बहता हुआ देश में पहुंचाएगा, तो सबके मन में दूध और मधु बह रहा है। ओके, जैसा हम विश्वासियों के मनों में सोना बह रहा है। ओके, क्योंकि स्वर्ग में सोना है। ओके, मैं तुम्हारे लिए वहां पर जाकर अनेक निवास स्थान बनाऊंगा, तो सबके मन में ओके ऑलरेडी 2 BHK 3 BHK बुक हो गया है। ओके, लेकिन हम अक्सर विश्वासी लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर देखो 23 वाक्य में क्या लिखा है, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा, दूध मधु बहने वाले देश में नहीं। जबकि वो सही है, एक तरफ सही है, लेकिन अमोरी, हित्ती, पेरिजी, कनानी, हिवीती, जेबूसी, इनके बीच में ले चलूंगा। तो ये सब परेशानी के बीच में है। तो यदि उद्धार हुआ है तो परेशानी के बीच में परमेश्वर ले चलना चाहता है, उसके लिए तैयार रहो, स्वर्ग जाने के लिए नहीं। तो उन परेशानियों के बीच में हमारा विश्वास सिद्ध हो जाता है। उन परेशानियों के बीच में, दिक्कतों के बीच में, विरोधियों के बीच में हमारा विश्वास और मजबूत होता है और साबित होता है। उद्धार के वक्त विश्वास शब्दों में हमने बयान किया था, हाँ मैं विश्वास करता हूं, यीशु को ग्रहण करता हूं, हमने हाथ उठा के ये गवाही दी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जबान का कबूली बहुत जरूरी है, वो अच्छी बात है, लेकिन that is only the beginning. When we took water baptism, we accepted God as our personal savior by the confession of our mouth. We accepted Christ. That is very important, but that is only the beginning. Okay, what we confess with our mouth, the life, the practicing what we confessed is the journey on this earth. We need to be prepared for that. जैसा एक शादी करने वाला दो जवान, ओके, एक लड़का और लड़की जब शादी करता है उस वक्त I do बोलता है। ओके, मैं मेरे पत्नी को, या पत्नी बोलती है मैं मेरे पति को, ओके, संभाल रखेगा, अधीन रहेगी, प्रेम करूंगा वगैरह, बहुत हम उस वक्त वादा करते हैं। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है वो वादा करना, लोगों के गवाही के बीच में, ओके, मंडली के बीच में हमें ये गवाही देना है, कन्फेस करना है। ओके, लेकिन हम उस हमारे जबान जो हमने दिया है हमारे पति और पत्नी को, वो हम पूरा करते हैं कि नहीं, वो अगला दिन से पता चलेगा। जब परिवार शुरू होता है, पारिवारिक जीवन शुरू होता है, विशेष करके 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, ओके, तब पता चलता है कि हमने जो आई डू बोला वो क्या हो रहा है। तो ये सब उदाहरण है हमारे आत्मिक जीवनों को समझने के लिए। इजरायलियों का भी एक उदाहरण है। परमेश्वर जो कुछ भी कहा उसको संपूर्णता से हमें लेना है। ओके, सो God's promise is not only about a land flowing with honey, but that is an accomplishment or a result of
the overcoming life or the victory over Amorites, Canaanites, Jebusites, Hittites, and Perizzites. Similarly, the eternal life or heaven will be a result of our overcoming life on earth. If not, it's a big question mark. Okay? तो ये बहुत बड़ा सीख हमें पुराने काल में इन वचनों से हमें लेकर आगे बढ़ना है. Let us examine. वो दूत जो इजरायलियों के आगे आगे गया, हमारे आगे आगे भी हमारे साथ साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजा है, जबकि पवित्र आत्मा को हमारे अंदर परमेश्वर ने रखा है. ओके, तो वो जैसे पवित्र जैसे अगुवाई करते हैं वैसा हम जीवन जिए. ओके, और तब परमेश्वर हमें वादा करता है. 25 वाक्य पढ़िए. तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा. यस, परमेश्वर क्या देगा? आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा. हाँ, तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, बीमारियों को दूर करेगा. कब? वचन शुरू कैसे होता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना तब. हाँ, हम जब कुछ करेंगे तब. ओके, सो गॉड इज नॉट somebody who is sitting to listen to our orders or listen to our we call it prayer list, but usually well, I'm saying it generally कि यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को न सुनकर हम यदि केवल प्रार्थना और विधि करते हैं, तो वो प्रार्थना नहीं है, ऑर्डर है, या परमेश्वर से उनके जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक आशा है. वो गलत है. हमारे पक्ष में जो जिम्मेदारी है वो हमें पूरा करना है. और वो क्या है? यदि तू यहोवा की उपासना करे. ओके, इफ यू सर्व द लॉर्ड. Okay, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. परमेश्वर को करना पूरे हृदय, पूरे मन, पूरे शक्ति से. ओके, तो परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से हमें सब कुछ करना है. पहला स्थान. ओके, उनकी उपासना करना है, तब उनका आशीष हमारे पर रहेगा और सब प्रकार के रोग को दूर करेगा. और कोई भी क्या नहीं होगा? 26 वाक्य. तेरे देश में से न तो किसी का गर्भ गिरेगा, न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा. ना कोई बांझ होगी और व्हाट डू यू कॉल फॉर मिसकैरेज? गर्भ ना गिरेगा. गर्भ ना गिरेगा. यस, किसी का गर्भ ना गिरेगा और ना कोई बांझ होगा. ओके, ये परमेश्वर का वादा है. इफ वी सर्व हिम एंड इफ वी ओबे हिज कमांडमेंट्स. अभी ओबे हिज कमांडमेंट्स, परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे तो ऐसा होगा. तो आज्ञा पालन करेंगे तो उसका मतलब क्या है? क्या आज्ञा पालन करना? उसमें भी हमारे या मनुष्यों के मनों में एक गड़बड़ी है. अक्सर मनुष्य सोचता है या विश्वासी लोग सोचते हैं आज्ञा पालन मतलब व्यभिचार ना करना, हत्या मत करना, ये ना करना, वो ना करना. ये सब सही है, वो सब आज्ञा पालन करना है. ओके, और भी बहुत कुछ है जो नए नियम में है, वो भी आज्ञा पालन करना है. लेकिन क्या हम ये, मैं अभी कुछ उदाहरणों को आप लोग के सामने पेश करना चाहता हूं. क्या उन चीजों को हम
गिनती में लेते हैं आज्ञा पालन करना, जैसा हमारे खाने पीने का तरीका, कि हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं। मैं दारू पीने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नॉर्मल खाना में भी हम क्या खाना खाते हैं, हमारे खाने पीने में अनुशासन है क्या? Do we have discipline in our eating habits? Okay. Number 2, cleanliness, स्वच्छता। मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान लेकर आया, लेकिन परमेश्वर का वचन में ये अभियान बहुत तेजी है। ओके, निर्गमन का पुस्तक में, गिनती का पुस्तक में, लेवी व्यवस्था के पुस्तक में, व्यवस्था विवरण के पुस्तक में आप पूरा अभ्यास करेंगे, पता चलेगा परमेश्वर छोटे से छोटे बातों को लेकर कैसे अपने जीवन में शुद्धता रखना है, अपने नगर को शुद्ध रखना है, अपने घर को शुद्ध रखना है, खाने पीने के बारे में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ओके, शरीर के लिए क्या सही है, क्या सही है, इसका सब विस्तार में वचन लिखा है। ओके, ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज्ञा पालन में ये भी आता है। ओके, और इसका जिक्र मैं इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार जब बीमारियां आते हैं हमारे जीवन में, हम ये सब नहीं सोचते, हम केवल बीमारी आया तो ब्रदर प्रार्थना करो तो मुझे चंगाई करे। ओके, मैं बोलता हूं कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है आत्मा में कि कई लोगों के विषय में कि ये प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के बदले में ये व्यक्ति को ये बीमारी जिस कारण से आया है उस क्षेत्र में अनुशासन होना बहुत जरूरी है, थोड़ा डिसिप्लिन होना जरूरी है, उसमें से चंगाई आ जाएगा। So many a times because we are not living a disciplined life in our diet, in what we eat, in how we take care of our body. Okay, cleanliness matters, in all the other matters, disciplines. Okay, because of that lot of sickness also comes. So let us examine ourselves. Okay, हर बीमारी उसके वजह से नहीं है, कोई लोग यदि अनुशासित जीवन जीता है तो भी बीमारी आ सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमें अपने आप को जांचना ये बहुत जरूरी है। चंगाई के लिए प्रार्थना करने के पहले जांच कर प्रार्थना करना ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे कभी कभी जब मैं रात को यदि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ, यदि मैंने ठीक से जितना सोना चाहिए उतना मैंने यदि नहीं सोया, तो मैं सुबह उठते वक्त मेरा सर दर्द होता है, बहुत सर दर्द होता है। ओके, तो जब सर दर्द होता है मुझे क्रोसिन या खाने का मन नहीं होता, मैं ये सोचता हूं कि मैंने मेरे जो सोना है, नींद जो है वो मैंने अनुशासन नहीं किया, आई डिड नॉट डिसिप्लिन माय स्लीप टाइमिंग्स, इसीलिए ये हुआ है। सो लेट मी करेक्ट दैट। और उस दिन जिस दिन मेरा सर दर्द होता है, मैं यदि थोड़ा सो लूंगा तो अपने आप मेरा सर दर्द चला जाता है। ओके, तो प्रार्थना नहीं किया उस सर दर्द के, चंगाई नहीं किया, लेकिन जो चीज मैंने नहीं किया, अनुशासन नहीं किया था, वो अनुशासन जब मैं करता हूं तब वो चंगाई हो जाता है। जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई सेड दैट। ओके, तो परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है। परमेश्वर हमारे रोग को निकालना नहीं, परमेश्वर हमारे बीच में रोग आने ही नहीं देगा, ऐसा चाहता है। पढ़िए वो 25 वाक्य और एक बार। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना,
तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। Okay, रोग दूर करेगा. I will take sickness away from the midst of you. Yeah, it said I will take it away. Okay, so no one shall suffer miscarriage and or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. Okay, so let us enter into the fullness of life. While we are on earth, we have an option. Let us enter into eternal life while we are on earth. अनंत जीवन में हम जब संसार में है तब भी प्रवेश करें. संसार का जीवन के बाद नहीं. अनंत जीवन हमारे उद्धार के दिन से शुरू होता है. इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करने को जब सिखाया, शिष्यों से कहा इस प्रकार से प्रार्थना किया करो, और उसमें एक पंक्ति ये था, तेरा राज्य आए. ओके, तेरी इच्छा हो जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में. ओके, तो तेरा राज्य पृथ्वी का जीवन होने के बाद नहीं शुरू होता है, उनका राज्य पृथ्वी में. ओके, तो उनके राज्य में क्या होता है. Okay, so let us be ambitious spiritually. Let us be ambitious in those things which God has spoken, because Satan has kept us blinded from these truth. Okay, शैतान हमें अंधेरे में रखा है इन सच्चाइयों से. कौन से सच्चाई से? कि विश्वासी लोग ऐसे सोचते हैं कि जब तक हम संसार में है हम सिद्ध तो नहीं है तो पाप होता रहेगा, हम तो करते रहेंगे, लेकिन प्रभु दया दिखाता है. ये शैतान का झूठ है. हम ऐसा कहना चाहिए, वो चीजें कहना चाहिए जो परमेश्वर हमसे आशा रखता है. और परमेश्वर कहता है कि पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए. सो लेट अस एम फॉर दैट, लेट अस बी एम्बिशियस फॉर दैट. और ये विजयवन जीवन के बारे में कनानी, हित्ती, पेरिजी और अमोरी ऐसे दुश्मनों के ऊपर विजय का बारे में परमेश्वर ये भी कहता है 30 वाक्य में कि थोड़े थोड़े करके विजय प्राप्त होगा. पढ़िए वो 30 वाक्य 30. जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा. हाँ, जब तक, क्या लिखा है? जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले. सॉरी, जब तक फूल फल कर. जब तक तू फूल फल कर मतलब बढ़ता नहीं है. फूल फल कर देश को अपने अधिकार में नहीं लेता. तो जब तक हम एक चीज ना होंगे हमारे अंदर, तो पहला वो होना चाहिए, तभी विजय पूर्णता में होगा. ओके, तो इजरायलियों के विषय में परमेश्वर कहता है कि जब तक, until you have increased and you inherit the land, तो बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है. ओके, बढ़ोतरी जब तक ना होगा और देश के ऊपर क्या होगा? Inherit the land. What do you call for? उसी वाक्य में ब्रदर, जब तक तू फूल फल कर. हाँ, Which verse is पढ़ो. it? सेम कंटिन्यू. जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब ओके, मैं तो देश को अपने अधिकार में न लेगा. ओके, तो देश को अपने अधिकार में लेने के लिए
दुश्मन के देश को अधिकार में लेने के लिए, हमारे अधीन में लेने के लिए हमें बढ़ना है। ओके, जब तक तू फुल फल कर, मतलब until you increase and inherit the land. ओके, तो आत्मिक जीवन में जब हमारा उद्धार होता है, उद्धार होने के बाद हम वचन में और प्रार्थना में बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो परमेश्वर ये आशा रखता है हमसे, जब तक हम बढ़ते न रहेंगे तब तक इन दुश्मनों के ऊपर, हमारे आत्मिक जीवन में दुश्मनों के ऊपर हमें विजय नहीं होगा। तो अक्सर हम बढ़ते नहीं है। विश्वासी लोग यदि प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते और बढ़ते हैं उसके वजह से, लेकिन आशा रखते हैं कि शैतान के ऊपर विजय होना चाहिए। ओके, ये आशा गलत है। Okay, so on one side we have to increase in the Lord. We have to grow in the Lord. And as we grow in the Lord, we will be victorious day by day. In every challenges, in every temptation, we will be victorious. But how we will be victorious? Verse 30 says, little by little, I will drive them out from before you. जो कनानी, हित्ती, अमोरी और ये सब दुश्मन लोग हैं ना, उनको परमेश्वर ने कहा, उनके बारे में परमेश्वर ने कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके उनको निकालूंगा। और वो थोड़े थोड़े करके निकलने के समय पर साथ में क्या हो रहा है, इजरायली लोग थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे, परिपक्व हो रहे। सिमिलरली इज इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। All the weaknesses that we have, all the negative behaviors or habits that we have, that will go from our life little by little, provided we increase in the Lord little by little. So the growth happens slowly, and as we grow, we will win over the enemy and we will grow closer to perfection. Okay? So that's a lesson that we learn for our spiritual life. In chapter 24, okay, उसके पहले 23 अध्याय के 32 वाक्य पढ़िए। 32। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में न रहने पाए। ऐसा न हो कि वे तुझसे। बस परमेश्वर कहता है इन अमोरी, कनानी और हित्ती ऐसे लोगों के बारे में, इजरायलियों को कहता है कि तू उन लोगों के साथ कोई वाचा न बांधना। ओके, तो हर प्रकार का वाचा है, कोई भी वाचा। इन इंग्लिश इट सेज कवेनेंट। ओके, सो मैरिज इज ऑल्सो अ कवेनेंट। सो there is a message hidden there. No covenant we have to make with the unbelievers, with those who are not in the Lord. Okay, so that's a message there. Chapter 24 verse 1, 24 अध्याय का पहला वाक्य। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरानियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। हाँ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू आरोन, नादाब, अबीहू और इजरायलियों के 70 अगुवाई लोगों के साथ आना, लेकिन कैसे दंडवत करना? दूर से दंडवत करना। दूर से दंडवत करना। अब परमेश्वर ने मूसा को अकेले में, सिर्फ गुप्त में ये बात क्यों नहीं कहा? परंतु परमेश्वर यहाँ पर मूसा से कहता है कि आरोन को भी लेकर आओ, नादाब को भी, अबीहू को भी, और इजरायली प्रजा के 70 अगुवाई लोगों को लेकर आओ। पर्वत के ऊपर नहीं, पर्वत के नीचे ही, दूर से।
दंडवत करने के लिए। ओके, पर्वत के ऊपर केवल मूसा को अनुमति था ऊपर जाने के लिए। लेकिन ये इसका अर्थ क्या है? ओके, परमेश्वर के राज्य में गवाही के रूप में परमेश्वर ने कुछ लोगों को खड़ा किया है, एक जिम्मेदारी सौंपा है। वो कलीसिया के अगुवाई लोग हो, ओके, एक पारिवारिक जीवन में माँ बाप हो, ओके, और भाई बहनों में बड़ा भाई बड़ी बहन हो, ओके, ये सब अधिकारी पद में है, अधिकारी पद में है। कैन और आबेल के विषय में देखो, जब छोटा भाई आबेल को कैन ने मारा, ओके, तब परमेश्वर ने किसको प्रश्न किया? कैन को। ओके, कैन से पूछा आबेल के बारे में, और उत्तर में कैन परमेश्वर से क्या उल्टा सवाल करता है? कैन परमेश्वर से पूछता है, क्या मैं मेरा भाई का रखवाला हूं? ऐसे। तो उसका अर्थ क्या है? जब परमेश्वर कैन से सवाल करता है, उसमें एक चीज छिपा हुआ है। परमेश्वर इसलिए सवाल करता है क्योंकि आबेल जो छोटा भाई है, उसका रखवाला है तू। ओके, तेरा जिम्मेदारी है। ओके, वो हुआ भाई बहनों का विषय में। अब माँ बाप के विषय में आ जाओ। आदम और अव्वा, जब अव्वा ने पहला फल खाकर फिर आदम ने भी खाया, परमेश्वर ने सवाल किसको किया? आदम को। ओके, तो एक जिम्मेदारी का एक विषय मैं बता रहा हूं। परमेश्वर किन लोगों को जिम्मेदार ठहराता है, उसी प्रकार अगुवाई लोग, ओके, इजराइल देश के अगुवाई लोग, कलीसिया के अगुवाई लोग, पासवान हो, ऐसे। सो हर क्षेत्र में परमेश्वर हमसे कुछ ना कुछ तरीके से जिम्मेदारी का आशा रखता है। ओके, हम जिम्मेदार बनना चाहिए, जिम्मेदार विश्वासी, कौन से भी उम्र का हम हो। ओके, जो संडे स्कूल में जाते हैं बच्चे, यदि 12 साल का एक बच्चा है, या 14 साल का, या 15 साल का एक जवान है, वो छोटे साल के 10 साल, 9 साल या 5 साल के बच्चों के ऊपर एक जिम्मेदारी है उनका। ओके, ऐसे परमेश्वर आशा रखता है हर क्षेत्र में, हर पद में। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा के साथ आरोन, अबीहू और 70 अगुवाइयों को वहां पर नीचे खड़े रहने के लिए कहा, क्योंकि आगे कुछ होने वाला है, वो गवाही के रूप में देखने के लिए। ओके, और मूसा से परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? दूसरा वाक्य, केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। केवल मूसा आए परमेश्वर के निकट, ये परमेश्वर का आदेश था। आगे पढ़िए, तीसरा वाक्य। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है, उन सब बातों को हम मानेंगे। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। जब अगुवाई या आपके माँ बाप या आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन जब कोई बात कहता है, तो वो बातें सुनने से हमारा परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर होता है। मूसा ने जो बात कहा
वो लोगों ने एक मन होके कहा कि हम परमेश्वर के कही हुई हर बातें सुनेंगे। ओके, इस कारण वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति भी उतर आया। ओके, जहां पर आज्ञा पालन होता है वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य उपस्थिति उतर आता है। प्रेरितों का पुस्तक में 35 का दिन और उसके बाद के उस घटनाओं को आप ध्यान से देखो, हर जगह पे लिखा है जब विश्वासी लोग कलीसिया में एक मन के ओके प्रार्थना की, तब वहां पर सामर्थ्य कार्य हुआ, सामर्थ्य कार्य, और रोज हो रहा था, रोज अद्भुत कार्य हो रहा था। तो प्रेरितों के पुस्तक में लिखे हुए घटनाओं में उस समय के विश्वासी लोग, जो पहला कलीसिया स्थापित हुआ था, वे सब एक मन के थे। इसीलिए तो एक छोटा सा झूठ भी अनन्यास और सफीरा द्वारा, जो छोटा सा झूठ भी उन दोनों को खत्म कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का पवित्रता उतना वहां पर उपस्थित था। तो यहां पर लोगों ने एक होकर परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने का एक निर्णय लिया। और फिर मूसा के बारे में क्या लिखा है 4वां वाक्य में? तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। ओके, मूसा ने क्या किया? सब वचन लिख दिए। मूसा ने परमेश्वर के दिए हुए हर वचन को लिखा। उससे हमें पता चलता है कि ये पहले 5 पुस्तक मूसा ने लिखा हुआ है। इसका एक यहाँ पे एक झलक है, या यहाँ पे एक सबूत है कि मूसा को ये आदत था कि हर बातें लिख कर रखने का, जबकि उस समय लिखना बहुत मुश्किल था। ओके, there were very limited sources to write things and keep on record. Okay, लेकिन फिर मूसा ने लिखा। Okay, so he used to make a record of what God spoke. Okay, तो इससे हम सब के लिए एक encouragement है कि हम सब परमेश्वर के साथ का अनुभव होता है, हमारा व्यक्तिगत अनुभव, परमेश्वर से जो भी बातें करता है वो लिख कर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। ओके, रिकॉर्ड में रखना बहुत अच्छा है। ओके, क्योंकि कुछ सालों के बाद आपको मुड़ कर देखना है तो इन्हीं बातों के द्वारा परमेश्वर ने जो आपसे किया है वो आपको बहुत उत्साहित करेगा। ओके, सो दैट्स अ गुड हैबिट टू जस्ट राइट, रिकॉर्ड थिंग्स व्हाट गॉड स्पीक्स टू यू। और दूसरी बात, इन 70 अगुवाइयों के बारे में जो लिखा है, विशेष करके ये 70 अगुवाई जो है ये पुरुष लोग है। ओके, तो यहाँ पर मैं पुरुषों को मुझे साथ में शामिल करके बोल रहा हूं। हम पुरुषों के लिए एक परमेश्वर के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो परमेश्वर का एक आशा है पुरुषों से कुछ जिम्मेदारियों को लेना, क्योंकि परमेश्वर पुरुषों को जिम्मेदार ठहराता है। कलीसिया के कई चीजों को या आत्मिक चीजों को लेकर एक पद बनाकर हमें नहीं, उस नजरिया से नहीं देखना है, परंतु सेवकाई या कार्य, it is not a position but it is a service to the Lord, and we men have to get into that service. हम पुरुष जो है इस कार्य में लगना है, आत्मिक चीजों के जिम्मेदारियों को लेना बहुत जरूरी है। मैं क्यों इसमें जोर दे रहा हूं, क्योंकि
अक्सर कलीसियाओं में, केवल हमारा कलीसिया नहीं, कई जगह पे मैंने देखा है कि मीटिंग्स में, प्रार्थना सभा में, उपवास और प्रार्थना, ऐसे सब मीटिंग्स में स्त्रियां ज्यादा है, पुरुष लोग कम है। ओके, तो ये बहुत दुख की बात है। दुख की बात ये नहीं है कि स्त्रियां है इसके लिए, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड, स्त्रियां ज्यादा है ये बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए। लेकिन दुख की बात ये है कि पुरुष लोग क्या कर रहे हैं। ओके, और ये सब, ये सिर्फ बड़े बड़ों की बात नहीं है केवल, लेकिन जवान लड़कों की भी बात है। जो बड़े लोग करते हैं वही जवान लड़के भी वही करते हैं। एक युवकों का मीटिंग में भी आप देखेंगे ज्यादातर लड़कियां आते हैं। ओके, लड़के कहां पर है, क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। ओके, शादी ब्याह के विषय में भी, क्योंकि मैं हमारे कलीसिया के जो भी जवान लोग जो शादी का उम्र में आता है, तब एक उनका बायोडेटा बनाता है। तो हमारे कलीसिया का जो जवानों का जो बायोडेटा, शादी के उम्र का जो बायोडेटा का जो फाइल है, वो फाइल मेरे पास है। तो कई जवान लोग, उनका जो बायोडेटा है आप छान कर देखेंगे, ज्यादातर सब लड़कियां हैं। और दूसरे कलीसिया के पासवान जो इन चीजों में मदद करते हैं, एक लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, तो उनके साथ जब मैं बात करता है कि हमारे कलीसिया में एक लड़की है जिसको ऐसे ऐसे उनका डिटेल्स ये है, तो क्या आपके नजर में कोई है सूटेबल एक लड़का है क्या, जब पूछते हैं तब वो भी उत्तर में ऐसा देता है कि हमारे पास भी सब लड़कियों का प्रोफाइल है ज्यादा। तो ये मैंने बहुत जगह देखा है, सब जगह पर ज्यादा लड़कियों का। तो मैं अपने आप को बहुत बार पूछा हूं, ये लड़के कहाँ गए, लड़के कर क्या रहे हैं। What I'm trying to say is that the boys, the men, we are living in a generation where the boys and men of the church are not taking responsibility. Somewhere there is a bending happening, and the sisters are vibrant in faith, most of the sisters. Okay, और ये केवल अभी का प्रॉब्लम नहीं है, यीशु के समय पर भी देखो, सबसे पहला यीशु किसको प्रकट हुआ, स्त्रियों को। ओके, तो ये जो गुण है परमेश्वर चाहता है कि पुरुषों में हो। ये वचन के द्वारा मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर 70 अगुवाई लोगों को परमेश्वर चुना कुछ जिम्मेदारी निभाने के लिए। और गिनती का पुस्तक निकालिए, गिनती का पुस्तक उसका पहला अध्याय, नंबर्स चैप्टर 1। अब यहां पर मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं। गिनती का पुस्तक पहला अध्याय, ये वो समय में है जब इजरायली लोग मिस्र देश से छुटकारा प्राप्त करने के बाद 13 महीना हो चुका है, 1 साल और 1 महीना हो चुका है। ओके, तो यात्रा, मरुभूमि में यात्रा करके 1 साल होने के बाद परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है कि अब इजरायलियों का गिनती करने का समय आ चुका है। ओके, देयर इज अ टाइम, इट्स अ टाइम टू टेक सेंसस। तो गिनती करने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा, दूसरा वाक्य पढ़िए। इजरायलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घराने के अनुसार एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। किसकी गिनती? एक पुरुष की गिनती। हाँ, हर पुरुषों का गिनती, हर परिवार से पुरुषों का गिनती लेना, ऐसा लिखा है। अभी आगे कंडीशन, क्वालिफिकेशन देखो। अभी कोई भी पुरुष नहीं, जो पुरुष 20 साल के उम्र के ऊपर है, पढ़िए। जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो
और जो युद्ध करने के योग्य हो उन सबों को हाँ, उनके दल चुन के लो। अनुसार तू आरून को गिन लेना। बस तो 20 साल के उम्र के ऊपर पुरुष होना चाहिए और युद्ध करने के लायक होना चाहिए। ओके, तो पहला कंडीशन क्या है? जब परमेश्वर चुनता है, पुरुष को चुन रहा है, और कैसे पुरुष? 20 साल के ऊपर। तीसरा कंडीशन, युद्ध करने के लायक होना चाहिए। ओके, अब आप मुझे बताओ 20 साल के ऊपर का पुरुष युद्ध करने का लायक कब बन सकता है? जब उसके जन्म से लेकर 20 साल तक उसको युद्ध करने का लायक बनाया हो, तब वो लायक बनेगा। अगर उसको युद्ध के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं है तो वो युद्ध करने का लायक कैसे बनेगा? वो उसका चुनाव नहीं होगा युद्ध के लिए। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में हमारे बच्चों को जन्म से लेकर उनका एडल्टहुड तक हम माँ बाप का जिम्मेदारी है कि उनको आत्मिक जीवन में युद्ध के लिए तैयार करना। और हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है। ओके, उसका मतलब आत्मिक जीवन के लिए उनको तैयार करना है, क्योंकि परमेश्वर एक चुनाव करने वाला है। जब हमारे बच्चे परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, God is going to call them. God wants to call them, and it's our responsibility to prepare them, and especially, not especially, sorry, that's a wrong word. जो लड़के हैं उनको हमें ताड़ना देना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि आगे जाकर यही लड़के पारिवारिक जीवन में परिवार का मुख्य बनने वाला है। They are going to be the heads of the family. So if they don't take spiritual responsibilities, how will they exercise headship in the families? Okay, so when God is choosing men of the Israel for war, and for us in our spiritual life, the war is the prayer room, okay, the prayer life and the word. Okay, so that is why I said in the fasting prayer meetings, in we have Saturday morning prayers in the church. So we have seen often, okay, ladies are there. Ladies are interested more in spiritual matters. The men are missing, and it's a sad state of affairs when God is God desires the men to come forward for prayer. Usually we see men interested in positions. Okay, पुरुष केवल पद पर ध्यान देता है. That is very bad. Okay, so instead of position, we have to get into service. This we have to, this message we have to put across. And there has to be an improvement in our families, in our churches. हमारे परिवार में और हमारे कलीसियाओं में ये इन बातों में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है. ओके, सो निर्गमन का पुस्तक में लौट के आएंगे. सो 24 अध्याय उसका 12वां वाक्य पढ़िए. निर्गमन उसका 24 अध्याय 12वां वाक्य. तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह. मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए. परमेश्वर ने मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाया और क्या कहा? मैं तुम्हें क्या दूंगा? पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था की और आज्ञा दूंगा. अपनी लिखी हुई मतलब परमेश्वर ने लिखी हुई आज्ञाओं को दूंगा. परमेश्वर खुद अपने हाथों से लिखा हुआ आज्ञाओं को
देने के लिए मूसा को बुलाया. In English it says, come up to me on the mountain and be there. I will give you tablets of stone and the law and commandments which I have written, that you may teach them, that Moses may teach Israelites. तो इजरायलियों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने पत्थर में लिखे हुए परमेश्वर वचन अपने खुद के हाथों से लिखा हुआ परमेश्वर ने दिया. He gave the tablets of stone and the law that he wrote. Why he gave? So that Moses will teach the Israelites. Okay. और हम हमारे बच्चों को क्या देते हैं? क्या हम हमारे बच्चों को आईफोन टैबलेट देते हैं, मोबाइल देते हैं, या हम व्यवस्था देते हैं? ओके, ये हमें अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है. फोन देना गलत नहीं है, टैब यूज करना गलत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता को हमारे आत्मिक जीवन में प्राथमिकता में लौट आना बहुत जरूरी है. प्राथमिकता क्या है उसके बारे में कह रहे हैं. ओके, कई बार कलीसिया में भी जब वचन पास्टर बांट रहा है तब बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को फोन दे देते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना करे, वो उधर बैठ के फोन में खेलता रहता है. ओके, मैं छोटे बच्चों का बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बच्चों की. तो ये परमेश्वर ने जो वचन दिया है, ओके, वो वचन हमें पहुंचाना है अगले पीढ़ी में. हम एक ऐसे पीढ़ी को देख रहे हैं अब जिनको परमेश्वर के साथ का अनुभव नहीं है, व्यक्तिगत अनुभव नहीं है. ऐसे एक पीढ़ी उत्पन्न हुए, ऊपर आ रहे. So it is a concern. It is a concern. When our forefathers, they began their spiritual life, with prayer and word as the primary thing, and that was passed on to us. Okay, somewhere we have failed to pass on to our children that as the main thing, because the world is changing and we have become like the world. We also have changed. Okay, so we have to come back as a church, as families, we have to come back. Okay, तो ये सब मैं जो बता रहा हूँ मैं सामान्य तरीके से बता रहा हूँ. आई एम टॉकिंग इन अ जनरल वे. मैं किसी को, आप लोगों को, किसी को व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ. हम सब जांचने वाली बात है. एक पूरा एक समूह होकर हमें जांचना है हम कहाँ पर है. Okay, so we are one family. The entire body of Christ is one family, and we all have failed. We have to repent and come back to God. So ये जो व्यवस्था है परमेश्वर स्वयं ने लिखा है. निर्गम 32 अध्याय निकालिए, 32 अध्याय, उसका 15 और 16 वाक्य पढ़िए. जो 24 अध्याय में हमने पढ़ा वो पर्वत के ऊपर जाने का एक बुलावट था. अब 32 अध्याय में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पर्वत में मूसा का मुलाकात हो गया. अब मूसा उतरकर, पर्वत से उतरकर नीचे आ रहा है. 40 दिन के बाद की बात है. 15वां वाक्य. तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया. उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था. हाँ, और वे तख्तियों के ऊपर लिखा हुआ था, मतलब पत्थर के ऊपर, जो पत्थर वो लेकर आ रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ था. आगे पढ़िए 16. और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था. उन तख्तियों पर, उन पत्थर पर लिखा हुआ परमेश्वर का लिखा हुआ था. In English it says, now the tablets were the work of God and the writing was the writing of God engraved on the tablets. Okay, तो परमेश्वर स्वयं लिखा हुआ वचन, इस वचन आज हमारे पास इस पुस्तक के रूप में है.
ओके, हम क्या करते हैं इस पुस्तक को लेकर? ओके, क्या हम हमारे बच्चों तक ये पहुंचाते हैं? व्यवस्था विवरण का पुस्तक में हम सब जानते हैं, परमेश्वर आदेश दिया, आज्ञा दिया मूसा को और इजराइलियों को अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते वक्त इन वचनों को सिखाना। मतलब परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा हुआ वचन हमारा जिम्मेदारी है सिखाना। निर्गमन 24 अध्याय उसका 13 वाक्य पढ़िए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। हाँ, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अकेला आना ऊपर। अब ये 13 वाक्य में जो लिखा है, सच कहूं तो मुझे स्वयं पता नहीं ऐसा क्यों मूसा ने यहोशू को क्यों लेकर गया। ओके, परंतु यहाँ पर ऐसा लिखा है। लेकिन जो भी है, हम यहोशू का पुस्तक जब पहुंचते हैं वहां पर, और गिनती का पुस्तक में भी हमें दिखाई देता है कि यहोशू एक लीडर बनकर उत्पन्न होता है। तो इन सब चीजों से हम सीखते हैं कि मूसा अपने सेवकाई में साथ साथ यहोशू को तैयार किया। जो भी वो कर रहा है यहोशू साथ में था, उसके साथ था। ओके, ऐसा वो तैयार हुआ एक दिन। ओके, हम क्या सीखते हैं इसमें? हम ये सीखते हैं कि हमें कोई भी स्तर में हो, एक माँ बाप, हम माँ बाप होने के नाते यदि हम देखेंगे, हम यदि चाहते कि हमारे बच्चे हमारे जैसे आत्मिक अनुभव उनका भी हो, तो हमें उनको हमारे साथ प्रार्थना में बिठाना है, वचन के समय पर बिठाना है, वगैरह वगैरह। ओके, प्रार्थनाओं में लेकर जाना है। ये सब जब हमारे बच्चे हमें करते हुए देखेंगे, वे भी एक दिन जैसा हमारा अनुभव था परमेश्वर के साथ, उनके साथ भी होगा, ये निश्चय है। उसी प्रकार कलीसिया में भी जब एक लीडर है या पासवान है, 10 साल 20 साल 30 साल जितने भी साल उन्होंने सेवकाई किया, लेकिन उनका समय जब समाप्त होता है, तब यदि ऐसा एक परिस्थिति या माहौल बन जाता है कि दूसरा एक लीडर नहीं है, तो वो बहुत दुखद परिस्थिति है। इन 20 सालों में 30 सालों में जितने भी साल वो सेवकाई किए, एक लीडर को उत्पन्न करना चाहिए था साथ में। एक लीडर को अपने कार्यों के साथ साथ दिखाना चाहिए था, कैसे करते हैं, साथ ले जाना चाहिए था। ओके, तो ऐसा हम सीखते हैं मूसा के द्वारा, कैसे यहोशू को वो साथ लेकर गया। ओके, और अंत में आखिरी वचन पढ़िए, 18 वाक्य। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हाँ, उस पर्वत पर मूसा 40 दिन और 40 रात रहा। ओके, तो कई बार कई चिंताएं शायद आ सकता है मूसा के अंदर कि नीचे आरोन खड़ा है, 70 अगुवाई लोग खड़े हैं, पूरे इजरायली प्रजा खड़े हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 हो गया, मुझे उनको जाकर बोलना पड़ेगा, थोड़ा और टाइम लगेगा। ये सब मानुषिक चिंताएं हो सकता है। लेकिन मूसा और इजरायली प्रजा में जो भविष्यवक्ताएं हैं ना, जो हम भविष्य पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं शुरू से लेकर, उनका जो जीवन शैली जब हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि वे लोगों का परवाह नहीं करते। ओके, एक भविष्यवक्ता को जब लोग मिलने जाते हैं, एक यहूदी मिलने जाता है एक समस्या को लेकर पूछने के लिए क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर के मुंह को खोजता है, प्रार्थना करके उत्तर देता है प्रजा को। तो जब भविष्यवक्ता को मिलने जाता है उसके तंबू में,
तब भविष्यवक्ता तंबू के बाहर आता है, उस इजरायली से मिलता है और वो अपना समस्या को भविष्यवक्ता से कहता है, और भविष्यवक्ता कहता है यहाँ पर रुक, मैं परमेश्वर से पूछ कर आता हूं, अपने बुद्धि से उत्तर नहीं देता। और दूसरी बात, यहाँ पर रुक कहता है, कब तक रुक नहीं कहता। ओके, ये बहुत ही ऊंचाई स्तर में एक अनुशासित जीवन है। ओके, उनको परवाह नहीं है। ओके, 5 मिनट रुक, 1 घंटा रुक, ऐसा नहीं कहता। जब परमेश्वर उत्तर देगा तब आकर वे उत्तर देंगे। तो ये बहुत हम यहाँ पर सीखते हैं, सभी 40 दिन तक परमेश्वर के उपस्थिति छोड़कर नहीं गया। मरियम को देखो, यीशु के चरणों में बैठा है। मार्ता कितनी कुड़कुड़ाकर मरियम के विरुद्ध कहती है, मरियम कोई परवाह नहीं, परमेश्वर का वो उपस्थिति छोड़कर नहीं जाती है। So let us not be bothered of the world and of the cares of this world. Let us, let us be ambitious to seek the Lord and get an experience of His presence. Let the Lord speak to each one of us. Amen. आइए हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करते वक्त हम लता के भाई जय को हम याद रखेंगे, और ईशिता के लिए प्रार्थना करेंगे। ईशिता उसका बर्थडे है, कल बर्थडे था, तो ईशिता को परमेश्वर ने संभाला और 1 साल आगे बढ़ाया, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब एक मन होके प्रार्थना करें। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद प्रभु आज का वचन के लिए। जैसे इस्राएल को आपने अमोरी, पेरिजी, कनानी और बाकी दुश्मनों के ऊपर विजय दिया, हमारे रोज के दैनिक जीवन में पिता परमेश्वर हमारे अंदर के गलत स्वभावों के ऊपर आपने विजय दे प्रभु, और आपने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया है। यस लॉर्ड, हमारे भीतर, हमारे अंदर जो है संसार जो है उससे सामर्थ्य है, ताकतवर है, ये हम विश्वास करें। और हर एक हमारे गलत स्वभावों के ऊपर यीशु के नाम से हम विजय घोषित करते हैं। We speak victory in the name of Jesus over all our negative behaviors. पिता परमेश्वर, आपका स्वभाव हमारे अंदर आए और पूर्णता हो प्रभु। यस लॉर्ड, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारे अंदर भी वही स्वभाव हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम जय भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके शरीर के हर एक कमजोरी और बीमारी को हम आपके सामने लेकर दें और आपके दिए हुए अधिकार से, हालेलुया, जय के शरीर में यीशु के नाम से हम चंगाई बोलते हैं। हर प्रकार का बीमारी जय भाई के शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर, ईशिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस बच्चे को आपने बचपन से ही, जन्म से ही आपने संभाला, उसको आत्मिक जीवन में भी और परिवार में मां के प्रति जो आपने जो मन दिया है एक अधीनता में रहने का, पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में और बढ़ते जाए प्रभु। यस लॉर्ड, आपके स्वभाव में और भी बढ़ते जाए। यस लॉर्ड, और भी जिम्मेदारियां उठाने वाले ऐसा एक बच्चा बने प्रभु। यस लॉर्ड, आप उसको दिन प्रतिदिन परिपक्व बना प्रभु, ऐसा प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम ईशिता को आशीषित करते हैं। धन्यवाद प्रभु। हम सबको आने वाले दिनों में आपके पुत्र यीशु के आने के लिए आप तैयार कर प्रभु। जैसा कल कलीसिया शुरू हुआ, हर प्रकार का जो ऑनलाइन जो यूट्यूब वीडियो कनेक्शन है, जो भी तैयारी करना है, परमेश्वर आप सब कुछ अच्छी तरह से हो, ऐसा होने दे प्रभु, ताकि सब जो घर बैठकर देख रहे हैं वो भी देख पाए प्रभु।
यस लॉर्ड। कल के आराधना को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप आशीष कर, वचन और आराधना और हर कार्य को आप आशीष कर प्रभु। यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. God bless you all. Praise God. Praise God, brother. God bless you. Praise God, bless you. brother. Praise God, Praise everyone. God, all of you. Praise the Lord, all of you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hello, man. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Praise God. the Lord.